A very good morning dear aspirants. बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है. वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री. इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 10 मार्च को घटित हुई थी. We shall discuss all the important events and facts that are most important from the point of view of all the government exams, followed by some practice questions at the end of the lecture based on today's discussion. तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिगिनिंग विथ 1897. सावित्रीबाई फूले पास्ड अवे. सावित्रीबाई फूले का निधन हो गया. सावित्रीबाई फूले was an Indian social reformer, educationalist and poet from Maharashtra. She is regarded as the first female teacher of India. इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 में in Naigaon in Satara district of Maharashtra. Pune was characterized by patriarchy and caste system. The revolutionary thought of Jyotirao Phule, who was the husband of Savitribai Phule, to educate the so-called lower caste evoked a sense of determination in Savitribai Phule too. Along with her husband Jyotirao Phule, she played an important and vital role in improving women's rights in India. फूले और उनके पति ने 1848 में पुणे के भीड़ेवाड़ा में पुणे का पहला भारतीय गर्ल्स स्कूल की स्थापना की थी. For the lower caste, she also established a school in Pune at Maharwada. उन्होंने शिक्षकों के शिक्षा के विचारों को भी बढ़ावा दिया. Along with Jyotirao Phule, she opened a care center for pregnant rape victims. The center was called as Balahatya Pratibandhak Grih. Savitribai Phule also took on the work of Satya Shodhak Samaj after the demise of her husband Jyotirao Phule. सत्य शोधक समाज को ज्योतिराव फूले द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1873. आज ही के दिन यानी कि 10 मार्च 1897 में इनका निधन हो गया. आगे बढ़कर देखते हैं ऐसी और कौन सी घटना है जो हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आज ही के दिन घटित हुई थी. वो है 1922. महात्मा गांधी was arrested for sedition. महात्मा गांधी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. On March 10th, 1922, Mahatma Gandhi was arrested and tried for sedition. He was sentenced to 6 years of imprisonment but came to serve only 2 years. इस केस का बैकग्राउंड जान लेते हैं. महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी. ये खिलाफत आंदोलन के साथ ही साथ चल रहा था और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का कारण भी था. The non-cooperation movement was running parallel to the खिलाफत movement and was a cause for Hindu-Muslim unity. लेकिन गांधी का शांतिपूर्ण सत्याग्रह 1922 में चौरी चौरा में हिंसक हो गया. उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में प्रोटेस्टर्स ने 22 पुलिस कर्मियों को बेरहमी से जलाकर मार डाला. The Chauri Chaura incident took place on the 4th of February 1922. And Mahatma Gandhi took moral responsibility for the violence at Chauri Chaura. इसके चलते गांधी जी ने 12 फरवरी को आंदोलन बंद करने की घोषणा की. इस डिसीजन को कई नेताओं ने अपोज किया क्योंकि ये आंदोलन अन्यथा सही दिशा में जा रहा था. However, गांधी जी called off the non-cooperation movement. On the 10th of March 1922, Gandhiji was arrested on the charges of sedition. He was accused of writing 3 seditious articles in a magazine called as Young India. Young India was a weekly paper or journal in English published by Mohandas Karamchand Gandhi from 1919 to 1931. सेडिशियस आर्टिकल्स लिखने के लिए गांधी जी को पुणे के यरवाड़ा जेल में बंद किया गया था और जेल में इन्होंने अपनी आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ का पहला भाग लिखा. He was released after 2 years because of ill health. He was released unconditionally on the 5th of February 1924, that is 2 years after his arrest. ये भी फैक्ट जान लीजिएगा कि गांधी को भारत में 7 बार गिरफ्तार किया गया था और उससे पहले दक्षिण अफ्रीका में उन्हें वहां एक्टिविज्म के लिए 6 बार गिरफ्तार किया गया था.
आगे बढ़कर देखते हैं हमारा अगला इवेंट जो है 1945 इंडियन पॉलिटिशियन माधवराव सिंधिया वाज बोर्न। भारतीय राजनेता माधवराव सिंधिया का जन्म हुआ था आज ही के दिन 1945 में। Madhavrao Jeevrao Scindia was an Indian politician and minister from the Indian National Congress. After completing higher studies from UK, Scindia followed the political tradition set by his mother Vijaya Raje Scindia by joining politics. He was elected to the Lok Sabha in the year 1971 from Gwalior. इससे पहले 1961 में वो मराठाओं के सिंधिया राजवंश के वंशज होने के नाते ग्वालियर के नाम मात्र राजा बन गए थे। हालांकि भारत के संविधान में 26th अमेंडमेंट के बाद भारत सरकार ने प्रिंसली इंडिया के सभी आधिकारिक प्रतीकों को समाप्त कर दिया, जिसमें शीर्षक, विशेषाधिकार और प्रिवी पर्स शामिल थे। Through the 26th Amendment to the Constitution of India, the Government of India decided to terminate the privy purses and privileges to the rulers of former princely states of India. However, he made his mark as an excellent administrator as the Railways Minister from 1986 to 1989 in the Rajiv Gandhi Ministry. Prime Minister P.V. Narasimha Rao made him the Minister for Civil Aviation. माधवराव सिंधिया की 30 सितंबर 2001 में उत्तर प्रदेश के मणिपुरी जिले के आउटस्कर्ट्स में एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। He passed away on the 30th of September 2001. Now let us have a look at the next topic for today, which is Central Industrial Security Force Raising Day. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस। Every year, the Central Industrial Security Force Raising Day is celebrated on the 10th of March. CISF was set up under an Act of the Parliament of India in the year 1969 on the same day, that is the 10th of March. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1969 के आज ही के दिन यानी कि 10 मार्च को अस्तित्व में आया था। CISF is a unique organization in the paramilitary forces of India. It is one of the largest industrial security forces in the world. ये पूरे देश में 300 से अधिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। In the CISF, there are some reserved battalions which work with the state police to preserve law and order. ये केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शासित है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। CISF is governed by the Ministry of Home Affairs. ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इज इट्स पेरेंट एजेंसी। तो CISF के हेड कौन है? The CISF is headed by Indian Police Service officer with the rank of Director General, assisted by IPS officer in the rank of Additional Director General. So what happens on Central Industrial Security Force Raising Day? On this day, that is on CISF Raising Day, the CISF officials celebrate the day with parade and several service medals are distributed to meritorious officers. तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। All the questions are based on today's discussion. सारे क्वेश्चंस आज ही के डिस्कशन पर आधारित है। अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और तैयारी जारी रखने के लिए सारे क्वेश्चंस के जवाब देने का प्रयास जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में सही जवाब लिखिए। प्लीज एंटर द राइट आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किस में देशद्रोही लेख प्रकाशित करने के लिए गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी हरिजन, ऑप्शन सी केसरी या ऑप्शन डी हरिजन सेवक। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत की पहली महिला शिक्षक माना जाता है? ऑप्शन ए सावित्रीबाई फूले, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी मैडम भीकाजी कामा या ऑप्शन डी लक्ष्मी सहगल। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट टेक प्लेस? निम्नलिखित आंदोलनों में से किस दौरान चौरी चौरा घटना हुई? ऑप्शन ए क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन,
या ऑप्शन बी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, या ऑप्शन सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, या ऑप्शन डी स्वदेशी मूवमेंट यानी कि स्वदेशी आंदोलन। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी ज्योतिराव फूले, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, या ऑप्शन डी सावित्रीबाई फूले। Practice question number 5. Through which amendment to the Constitution of India was Privy Purse abolished? भारत के संविधान में किस संशोधन के माध्यम से प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए 24th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 26th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट, या ऑप्शन डी 86th अमेंडमेंट। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6। Central Industrial Security Force is governed by which of the following ministries? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल निम्नलिखित मंत्रालयों में से किस मंत्रालय द्वारा शासित होता है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, या ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। With this question we've come to the end of today's discussion. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिला हो। If you do like this session, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। कल फिर से मुलाकात होगी with more important facts for your government exam preparations. Thank you for watching.